Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. Tricks to solve reading comprehension in law entrance exams easily. So reading comprehensions are becoming so common, and the best part about them is that you can score really well. आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के अंदर अगर आप को पता हो कि कैसे सॉल्व करना है. यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो, राइट. और ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा. क्लैट की बात करें, AILAT की बात करें, स्लैट की बात करें, जितने भी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें भी. और अगर आप कोई 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र CET, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एवरी लॉ एग्जाम हैज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, राइट. तो हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. अब हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. अगर हम सीख लें कि कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी. टिप्स एंड ट्रिक्स टू रीड द पैसेज इजीली, कॉमन मिस्टेक्स एंड सम सीक्रेट बोनस टिप्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. रिसोर्सेज दैट इज बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, कहाँ से हमें इतना प्रैक्टिस मटेरियल मिल सकता है, हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, लेवल्स क्या है, स्टेजेस क्या है. वी आर गोइंग टू डिस्कस everything today in this video. Please grab your notebooks and pens, make notes, and also grab some water because this video is going to be long but really very useful. This is going to be the master class for solving reading comprehensions. So chalo, let's get into this video. Things to keep in mind before you attack a passage. Remember one thing कि जो reading comprehensions हैं, they are a skill driven activity and not knowledge driven activity. You know, it is impossible to know each and every topic that is talked about in reading comprehensions. ठीक है ना. ये एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. यू शुड नॉट बी डिस्करेज व्हेन यू इनकाउंटर मटेरियल विच यू आर नॉट फेमिलियर विद. यू नो, ये हमें कोई नहीं बताता कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के अंदर मोस्ट कॉमनली हमें अब पढ़ने को मिलते हैं जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एनीथिंग, साइंटिस्ट लैंग्वेज होते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल आ जाता है, समथिंग और द अदर विच वी माइट नॉट हैव एवर रेड अबाउट, राइट. और कई बार तो कई पैसेजेस दे डोंट इवन मेक एनी सेंस, राइट. तो क्या हुआ, नथिंग. हमें अपना मतलब निकालना है. वी हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड from that passage and we are done. So what we have to do, so if we learn that how we have to answer the questions, that is all you need to know. So it is not a knowledge driven activity, it is a skill driven activity that you have to learn how to solve these questions, practice that how to wala part again and again and again, and you're good to go, right. So this is a good news. So jab bhi you see a passage, you should not approach the passage with an expectation that you will know it, you will know about the topic. If you know about the topic, very good. If you don't, just tell yourself it's okay, I have to just call out my answers and that's it, right. Read the passage with full focus without losing your concentration at any point, right. Remember, you know what happens when we see a passage like, oh, I don't know about this topic, ये क्या बोल रहा है यार, ये कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है ये कभी. We do like this. You don't need to. You just tell yourself it's okay, I have to just do my work. That is to read this passage with full concentration without thinking anything. नहीं समझ में आ रहा, just keep on reading. That will make sense to you when you come to the questions, right. Before you begin, activate super active mode in your head. You know, there should be a switch in your head when you switch it on and say, okay, fine, super active mode is on and I'm going to concentrate on this and not think about anything. That is what you need to do. Make sure you practice reading with focus and processing the information back home. You need to practice this back home. You need to, when you're reading, when you're attempting question paper of your law entrance exam, you need to concentrate 100%. concentration वाले पार्ट में जब भी कुछ दूसरा थॉट आता है, just kick it out, just punch it out of your brain, of your mind. You need to practice reading without moving your lips. murmur नहीं करना है. You don't need to ऐसे नहीं करना है. Just eye and mind should be put at work. We murmur, right. ऐसे करते हैं ना हम. ये भी नहीं करना है. ऊंची आवाज में तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते. It is an examination hall,
right? And you assume yourself back home that you're sitting in an examination hall when you solve RCs or a mock test even. And what you're going to put at work? Kya put eyes? You're going to look at the passage, read through the eye, and process it in the brain. No lips required. No ears required, just your eyes and brain. Processing ऊपर ही हो जाना चाहिए, नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, right? That is what you need to adopt the habit of, and this can be done. But you have to purposefully tell yourself कि ऐसा करना है. How to choose the method and what are different methods. अब बहुत सारे methods बोले जाते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. I'm going to tell you my method and also what others tell, right? So पहले देख लेते हैं, reading the question first and then reading the passage. Look, I swear by this. Whenever I come across RCs, I read the questions first and then I go back to the passage, right? I read the questions, the options like very quickly so that I know that what I have to hunt for. Because whenever I'm solving an RC, I assume myself to be a detective कि मुझे ढूंढना है, ठीक है ना? And if I read the questions first, I know that what I have to find, what is important. इतने बड़े पैसेज में मुझे पता है क्या मेरे लिए important है, क्या नहीं है, right? So this is the method that I normally go for. Like, you know in which lines or paragraph you might find the answer, so you mark such important lines. Now when you read the questions first and then you go to the passage, then you know that अच्छा इसके बारे में I think बात किया हुआ है question में, so let's mark there. So when you read the question again and you have to go back to the passage, you don't have to find those lines again. You know, okay, यहाँ पे कहीं पे I'll find the answer. The more and more you practice like this, the more you're going to be an expert. ठीक है ना? तो उसके बाद when you start solving questions, you won't have to read the entire passage, you won't have to reread the entire passage. Not reading the questions first, reading the passage first and then solving the questions. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हम पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे. वो आप पे डिपेंड करते हैं. बट अगर आपके पास टाइम है कि आप प्रैक्टिस करके पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और पैसेज बाद में पढ़ो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. बट आप दोनों अप्लाई करके देखो मेथड, जो आपको ईजी लगता है वो आप अडॉप्ट करो. कुछ लोग they also make notes of each paragraph, right? They make notes of each paragraph कि थोड़ा थोड़ा words लिख लिए. If that is what works for you, you can do this also. And when you're solving certain kind of questions, you need to write down कि अच्छा ये paragraph इस बारे में, ये इस बारे में. That is what we are going to discuss in the coming parts of the video. So ये समझ में आ गया कि एक method adopt करना ज़रूरी है और उसको practice करना है. When reading the passage, keep these things in mind. सबसे पहले, keep a note of reference words. This, that, it, referring to something that has already been mentioned. Normally हम क्या करते हैं? Normal tendency क्या होती है हमारी? We look out for something really important and we just leave these words. We jump these words, we leave these words. But actually, जो ये this, that, it होते हैं, they are referring to something which has already been mentioned in the passage, right? And these are the words that help us. ये help करते हैं हमारी to understand the passage. So we should not miss it. Instead, we should increase our reading speed. Okay, understanding reference words helps us understand all possible characters in the टेक्स्ट. ठीक है ना? तो हमें पता चलता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है ना? अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब किसके बारे में बताया, पहले किसके बारे में बताया था, राइट? डिस्टिंग्विश मेन आइडियाज फ्रॉम सपोर्टिंग आइडियाज and opinions or attitudes from factual objective information. Now you read a passage, especially when you read an editorials पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, उसमें हम देखते हैं कि एक लॉ के बारे में बाय चांस डिस्कस किया हुआ है, तो वो लॉ के बारे में भी बता रहे हैं और फिर वो अपनी ओपिनियन भी दे रहे हैं. यू शुड नो द डिफरेंस, यू शुड नो. अब वो कैसे पता चलेगा? वो यही जब आप वर्ड्स देखोगे ना, जैसे वो लाइन स्टार्ट हो रही है, जैसे वो बोल रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं या फिर वो फैक्ट बता रहे हैं. फैक्ट मतलब वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ओपिनियन मतलब वो अपनी बात रख रहे हैं कि मैं इसके बारे में ये सोचता या सोचती हूँ. Try to pick up hints
from the writing style about the author's attitude towards the subject, positive, negative, supporting, against, neutral. हमें पता चल जाता है that when a person is talking about something, that the person is favoring that topic, is against that topic, attacking that particular proposition, is neutral about it, what the person is saying, right? तो जब हम वो सारा पैसेज यू नीड टू, आपको भी ये सारे क्वेश्चंस मैं रट लूँ कि ये नो, व्हेन यू रीड वन बाय वन यू नीड टू कीप दीज इन योर माइंड. रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि मुझे टोन का ध्यान रखना है, जो ये वर्ड्स आ रहे हैं इनका ध्यान रखना है, ठीक है? अगर फैक्ट है, ओपिनियन, उसमें डिस्टिंग्विश करना है. सो बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. Take a note of link words or transitional words because वो बहुत कुछ बताते हैं. For example, link words, they tell us about the function of what is about to follow, helping us in understanding the overall structure of the text. Link words help us understand the flow of the reason and information in the text. वो हमें बताते हैं कि अब क्या हो सकता है, जो information ये आ रही है इस word के बाद. For example, add to the argument or emphasize a statement, and also, as well as, moreover, further, furthermore, in addition, additionally, next, secondly, thirdly. Comparisons कर रहे हैं तो similarly, likewise, in the same way. Highlight कर रहे हैं contrast को, shows differences or similarities, providing reasons. So अब again, you don't really need to remember this, but whenever you read, whenever you come across link words, they have a meaning which you will get to know when you are practicing. See कि इस word के बाद क्या आ रहा है, अच्छा ये ऐसा है, नहीं तो you can just go through this once, twice, make notes of this in your notebook, and whenever you are brushing up your RCs wala part, you can go through it, okay? Explaining results as a consequence, as a result, hence, therefore, thus, right? For example, for instance, if someone is giving an example, drawing conclusions, so that is what is there. Link words का हम normally focus ही नहीं करते in words पे. We are like, oh, let me read just the important parts, leave these words, okay? And then we don't get to understand. हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, but जो हमें बेसिक समझना है वर्ड्स देखकर समझ में आता है. And when you practice, you'll see that. अगर फोकस करने लग जाओगे ना इन वर्ड्स पे भी, तो you'll see the difference कि आपके आंसर्स जो होंगे वो सही होंगे. Solving questions. When solving questions, what you have to keep in mind. देखो, method of elimination. I know आपको लगेगा यार सभी बोलते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. Just after this video, pick up any RC, reading comprehension, and you will read the questions first, go to the passage, and what you will notice is that when you read the questions and then you go up and then you read the options, you'll feel that ye charo pancho options, all these options are correct because they are, the person has created the answers in such a format, right? But when you start crossing them out, you will see that there are options which are not relevant to the passage. See options wherein सब कुछ उल्टा बताया जा रहा है, जैसे कि passage जो passage में बताया जा रहा है उसका उल्टा बताया हुआ है, complete opposite. So obviously when you eliminate, when you cross out options, you will reach to the option that is the correct answer very quickly. हमें लगता है क्रॉस करने में टाइम लगेगा, बट नहीं. मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज when you read the options, it seems every option is correct because it is somewhat related to the passage, but actually when you apply the method of elimination, you cross out the options which you think is not an answer. You reread the options and reread the portion in the passage where you think the answer is. Obviously you try and reread that portion and the options, and then you see when you cross out the options that think that ये आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन को क्रॉस कर दो, you will arrive at the correct option. Then you cross out the options and voila, you will find the correct answer. हमेशा ये apply करना, it works. Answer the questions only on the basis of the information provided in the passage. कई बार हमें लगता है यार ये भी तो रिलेटेड है, ये भी तो रिलेटेड है, बट उसके बारे में पैसेज में बात ही नहीं किया होता. We cannot even infer from the passage. देखो, unless and until infer वाले questions नहीं है, या questions जिसके अंदर they demand you to think out of the passage, you don't need to think. You don't need to think. Sometimes the option is true in real life but has not been discussed in the passage.
then also it is going to be a cross, और हम ऐसी options की तरफ ज़्यादा attract होते हैं. Always read all the answer choices before selecting the best answer. This is one mistake that everyone commits. हम पहली option पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे, बीच से ये सबसे सही है, छोड़ो बाकी सब पढ़ते ही नहीं, save time. No. The best answer choice is the one that most accurately and completely answers the question being asked. Please read all the options before you arrive at an answer. How to solve different types of questions. Main idea वाले question से किस किस को डर लगता है? I know. But अब नहीं लगेगा. Look, understand the difference between subject and the main idea. Normally हमें लगता है जिस बारे में ये बात कर रहा है ना वही main idea. नहीं, main idea वो होता है जो अपने आप को ये पूछो, why this person who has written the article, why the person has written it, what the person is trying to tell you, what the author is trying to tell you, what is the main purpose, primary purpose क्या है उसका ये लिखने का, वो तुम्हें क्या समझाना चाहता है. अगली बार जब main purpose वाले question solve करोगे तो ask yourself this. Okay, subject of a piece of writing is that what the piece is generally about. ठीक है, facts and the information. When you look beyond the facts and information to what the writer is trying to make you understand, क्या प्राइमरी पर्पस है, क्या वो तुम्हें समझाना चाहता है. Whenever you get this main idea वाला question, ask yourself what the writer is trying to make you understand. author क्या समझाना चाहता है तुम्हें, ठीक है ना. Ask yourself what message the author is trying to convey about the subject. What message, right? ये सारे questions तुमने दिमाग में रखने हैं. Okay, अब try to find author's motive for writing the passage. Check the starting and the ending of the passage. Sometimes you get the hint there. बहुत बार कहा जाता है कि main idea आपको passage के starting में ending में पता चल जाता है, but बहुत बार नहीं भी होता है. तो when you get this main, जब आपने देख लिया ना main idea वाला question है तो उस हिसाब से passage को पढ़ो. Is he trying to make the people who will read this passage understand? क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? That is what is main idea. Inference questions. What can be inferred, implied, indicated, or is suggested? You need to, now in these kind of questions, this type of question, you have to go beyond the passage. You need to go beyond the statements, read between the lines. It's like you have to stay connected to the passage, but then you have to think a little bahar, thoda sa bahar, zyada bahar bhi nahi. You have to be connected. You cannot answer like completely out of the box. They are not clearly stated, but you can imply that this is what can be judged from the passage that you have read. ठीक है ना. To infer means to arrive at a conclusion by reasoning from the evidence. मतलब जो passage में information दी हुई है उसके basis पे you have to judge, you have to conclude. ठीक है ना, उस information के basis पे infer, judge, conclude. ये वाले questions मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे हमेशा सही होते हैं. Always go with elimination वाला thing कि eliminate and then you will arrive, and I do get the answer right. So I love inference वाले questions. They are asking you, what are they asking? What conclusions can be drawn from the context of the story? Try replacing the word infer in the question with conclude. That will make things easier for you. This is a tip. Guys, ये वाले जो tips है ना, ये पता है कब काम करेंगे? जब अपने घर पर जब practice कर रहे हो तब ये apply करोगे. The tips are going to work if you apply them back home. नहीं तो नहीं काम करेंगे. चाहे तुम्हारे पास 1 day रह गया है, apply करो. एग्जाम में 1 दिन रह गया, 15 days रह गया, 10 days रह गया, 1 year, 2 years, whatever. Apply these tricks, and best thing to do is go back to the passage and see how each answer fits with what the passage says. This is what you need to do. You say हमारे पास इतना time नहीं है, but actually you need to do this super fast and you will be able to arrive at the answer. Specific information questions. ये वाले जो questions हैं इसके अंदर आपको passage के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है. For example, inference वाले questions में मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा passage के, क्योंकि
वो उसमें इन्फर करना है, यू हैव टू कॉल आउट फ्रॉम द पैसेज में से ही निकालना है, बट फिर भी थोड़ा सा बाहर जाओगे। हेयर यू हैव टू find from the passage itself. You need to understand what is mentioned in the passage and you just need to find the answers to these questions from the passage. For example, ये कैसे टाइप का क्वेश्चन होता है? According to the author, which of the following statements is true or not? The author claims which of the following about so and so word? Which of the following statements what so and so? Right? तो ये बेसिकली कुछ लाइन्स होते हैं जिसके अंदर जिनको आपको रेफर करना होता है, ऑप्शंस को देख देख कर रेफर करोगे तो यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर। ठीक है ना? है दोज मार्क्ड लाइन्स आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है ना? अब आपने पढ़ा, अच्छा ट्रू और फॉल्स वाले में ये वाला पूछा हुआ था तो ये मैं मार्क कर लेती हूँ। ठीक है ना? सो दैट आई कैन कम बैक एंड सी एंड चेक, गो बैक टू द पैसेज वेयर दीज वर्ड्स आर मेंशन्ड एंड री रीड इट टू अराइव एट द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो अगर आप मार्क कर लेते हैं पहले से ही, तभी मैं कह रही हूँ कि ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो बैक टू द पैसेज सो दैट तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन सा चीज़ है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्वियसली हमारा एम क्या है कि हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर हमें सही से करना है। दैट्स द ओनली रीजन वी हैव टू रीड द पैसेज। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस भी ईजी होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होते। प्रैक्टिस गाइज, मतलब अगर ये वाली वीडियो देखकर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हें उतना हिसाब आता जाएगा। ठीक है ना? तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ से, जस्ट प्रैक्टिस। अब author's attitude or tone. These type of questions test whether you understand how the author views the subject about what he or she writes. हमने बात करा कि जब भी पैसेज पढ़ रहे हो तुमने देखना है वो नेगेटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, न्यूट्रल बात कर रहा है, कोई भी एक साइड नहीं ले रहा है, या उसने एक साइड ले लिया, वो सपोर्ट कर रहा है किसी इशू को या नहीं सपोर्ट कर रहा है, द पर्सन इज नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द टोन ऑफ द पैसेज माइट बी डिस्क्राइब्ड एज द ऑथर्स एटीट्यूड towards so and so thing, how to solve these kind of questions because they are there. Now pay attention to the kind of words or language used in the passage. For example, हमें उम्मीद है कि क्या पता कोई पैसेज आ जाए फार्मर्स बिल से रिलेटेड। ठीक है ना? some people are supporting it, some are against it, right? For example, the person supports it, you will get to know when you read about it, like you will get to know, right, from the words, from the language, from the tone. ठीक है? is the person angry or is happy? ठीक है ना? whether the author is supporting or attacking the subject, is the author negative or positive about the subject. tip, you can cross out the extreme options. you know क्या होता है, दो नेगेटिव होंगी दो पॉजिटिव होंगी, तो हमें दो ऑप्शंस तो कट गया ना, अगर क्योंकि या तो वो बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मान लो ये पॉजिटिव वाले ऑप्शन है बट द पर्सन इज नेगेटिव, सो यू जस्ट हैव टू चूज बिटवीन 3 and 4, 2 आर कट। सो ये वाला पार्ट होता है। ओके, find the meaning, guys. If you are preparing for CLAT or any other law entrance exam, ये find the meaning वाले questions बहुत ही common हैं। ठीक है ना? लास्ट ईयर CLAT 2020 में find the meaning वाले questions बहुत आए थे, हर passage में से पूछे गए थे। You need to call out the meaning from the passage. ठीक है? आपको पैसेज में से मीनिंग निकालना है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑलरेडी। आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी पता होगा। नाउ अब आप कहोगे अच्छा फिर आप हमें क्यों बोल रहे हो वोकैबुलरी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो? बिकॉज वोकैबुलरी हेल्प्स यू इन रीडिंग, इट हेल्प्स यू इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तभी जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो न्यूज़पेपर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, वही कॉमन वर्ड्स हैं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे, उनका मीनिंग जान लेंगे, तो व्हेन यू अपीयर इन द एग्ज़ाम आपको ईजी रहेगा। बट अगर जब आप एग्ज़ाम में जाते हो उस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, आपने वो वर्ड कभी देखा भी नहीं, पहली बार देख रहे हो, तो they are not there to check your vocabulary base. they are there कि आप पिछली वाली लाइंस, मान लो वर्ड यहाँ पे है, पूरी 3-4 सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको इस वर्ड का मीनिंग 101% मिलेगा and 99% chances are there that it will be right. So read the sentences before and after the word of which the meaning has been asked for, because most probably आपको 3-4 ऑप्शन में से एक दो वर्ड्स का या एक वर्ड का मीनिंग तो वैसे पता होता है, आप कहते हैं नहीं ये तो नहीं लग रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। डू दिस इवन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। yes, because they are saying that you have to answer in accordance to the context. जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज किया गया पैसेज में, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। तो इवन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उसमें पैसेज में पढ़ो कि यार किस क्योंकि देयर आर वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड
किसी भी तरह में, आप उसको पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हो, नेगेटिव में यूज कर सकते हो, उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो चेक, ये वाला जो है, ये वाली चीज करनी है हमने, वी हैव टू अप्लाई दिस, कि हम लाइंस पढ़ रहे हैं आगे पीछे वाली, ये करना है हमें। अप्रोप्रिएट टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। टॉपिक अराउंड विच द इंटायर पैसेज इज रिटन, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम नॉर्मली क्या मिस्टेक कमिट करते हैं। जो भी ऑप्शन डायरेक्ट, मतलब जो ऑप्शन डायरेक्ट या फिर सेम वर्ड्स यूज करती है पैसेज वाले, जिसके अंदर सेम वर्ड्स यूज किए होते हैं पैसेज वाले, हम कहते हैं ये सही है। वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट ऑप्शन बिकॉज हमें लगता है ये रिलेट हो रही है उसके साथ। बट नहीं, हमें कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ये हमें फूल बनाने के लिए करते हैं ऐसा, हमने अप्रैल फूल नहीं बनना है, ठीक है ना। टाइटल इज नॉट द कंक्लूजन, और ना ही टाइटल कंक्लूजन होता है, ठीक है। टाइटल क्या होता है, टाइटल शुड बी नीदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक पैसेज के अंदर जो बात करी हुई है, मतलब एक चीज की बात करी हुई है, वो ऑप्शन आप बना दो टाइटल, नहीं। नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट वॉट ईच पैराग्राफ टॉक्स अबाउट। जितने पैराग्राफ्स या जितनी लाइंस दी हुई, अगर पैराग्राफ नहीं है, जो वो बात कर रहे हैं जिस चीज के बारे में, वो सब कुछ टाइटल के अंदर वो कवर होना चाहिए। अगर पैराग्राफ फॉर्म में है तो ट्राई टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। यहाँ पे अब आपको देना पड़ेगा नाम, अच्छा ये नोट्स बनाओगे तो अगर ये पैराग्राफ है तो लिखोगे अच्छा ये इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, अच्छा इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है, तो ये वाला टाइटल सबसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। कभी भी नेवर गेट अट्रैक्टेड टू दैट वन ऑप्शन जिसके अंदर सब कुछ डायरेक्टली मेंशन किया होता है कि अच्छा ठीक है ये है, बट वो एक कैच होता है, ठीक है ना। तो क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ द पैसेज, टाइटल इज अ कॉमन थीम दैट रन्स थ्रू द पैसेज, मतलब सारा पैसेज कवर करती है वो, एक पैसेज नहीं, सारा का सारा पैसेज, सभी पैराग्राफ्स, ओके। वी नीड टू लुक at passage as a whole, never choose an answer just because that particular fact is clearly mentioned in the passage. You have to choose the most appropriate title and not the perfect or best. हमें लगता है कि यार जैसे हम इंग्लिश में वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट टाइटल, कि हम क्या अच्छे से अच्छा डिफरेंट टाइटल दे सकते हैं, वो नहीं। वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। टास्क क्या है हमारे यहाँ पे, टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके। रिसोर्सेज, आई नो अ लॉट ऑफ यू आस्क मी मैम बुक्स कौन सी यूज करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो, ऑनलाइन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका लग रहा है कि आंसर सही है। अगर इससे तुम्हारा मन नहीं बैठ रहा है, यू थिंक दैट द आंसर इज नॉट राइट और एनीथिंग, देन यू कैन गो फॉर एनी बुक विच इज स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। आई नो ग्रामर की बुक्स में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, बट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ बुक विच इज स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। मोस्टली एमबीए की आती है, कैट की आती है, जीआरई की आती है, जी मैट की आती है, आपकी आईएल्स की आती है, ठीक है ना। ये सारी बुक्स आती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं या मुझे अभी तक जो ठीक लगे। आई एम ट्राइंग टू फाइंड बुक्स एवरी डे। आई गो टू द लोकल मार्केट, ट्राई टू फाइंड द बुक्स विच कैन हेल्प यू, आई बाय बुक्स, गो थ्रू देम, एंड देन ओनली आई रेफर, ठीक है ना। तो अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे जैसे मुझे मिलती रहती है वो मैं वीडियोस के नीचे मेंशन करती रहती हूँ, ठीक है ना। अभी एक एमबीए के लिए बुक है, उसके अंदर वो मुझे अच्छी लगी है बिकॉज उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए भी है और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हुए हैं कि एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ये वाला ऐसे करना है। दो मैंने आपको बता दिए, बट मे बी उसके अंदर आपको और मिल जाए टिप्स की, अच्छा ठीक है ऐसा सॉल्व किया जाता है ऐसा। अब जब आप ये बुक्स खरीदोगे, कोई भी बुक, एनी बुक, यू कैन बाय एनी बुक, गो टू अ लोकल स्टोर, ट्राई टू फाइंड द बेस्ट वन फॉर योर सेल्फ, बट क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे होगा, और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। दो चीजें। नंबर थर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द लेंथ। देखिए जो हमारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लैट की एग्जांपल देती हूँ। क्लैट का जो लेंथ है, ठीक है ना, इंग्लिश में जो पैसेज आते हैं उनका लेंथ ध्यान में रखना है कि हमारे में इतना है, बिकॉज जो जीआरई एमबीए के एग्जाम्स हैं, आईएल्स का एग्जाम है, उसमें बड़े होते हैं, ठीक है ना। अगर डीयू का देखोगे तो डीयू में भी इतने बड़े बड़े नहीं होते, तो वो लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने टाइमिंग्स भी अपना, हमने जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस के अंदर क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू प्रैक्टिस ऑफ, हम पहले, ठीक है, हम पहले ये थ्योरी पढ़ लेंगे कि ठीक है यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस के अंदर, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे,
और उसके बाद हमें क्या, स्पीड, वी हैव टू वर्क ऑन द स्पीड, बहुत स्पीड और एक्यूरेसी लेकर आनी है। और अगेन जो टिप मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी यू कम अक्रॉस अ रॉन्ग आंसर तो देखोगे क्यों, वाई क्यों गलत गया, क्यों। जब ऐसा करोगे तो आरसीज अपने आप सही होंगे। हाउ टू प्रैक्टिस गाइस, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो या ये आरसी सॉल्व कर रहे हो, अपने घर में आपने ये समझना है कि आपका एग्जाम चल रहा है। यू हैव टू इमेजिन कि मेरा एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने अपने पास क्लॉक लेके बैठना है, मोबाइल फोन नहीं लेकर बैठना। मोबाइल फोन इज अ बिग क्रॉस, ठीक है ना। मोबाइल फोन लेकर नहीं बैठना, क्लॉक लेके बैठना है, टाइम नोट करना है स्टार्ट करने से पहले। और फिर उसके बाद आपने आरसी स्टार्ट करने हैं, 5 to 6 आरसी बैक टू बैक सॉल्व करने हैं। क्यों बैक टू बैक सॉल्व करने हैं? बिकॉज हमें हैबिट डालनी है, टू रीड मोर एंड मोर एंड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, हमें हैबिट डालनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एनी स्ट्रेस नहीं लेना, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पहले और फिर जो आंसर गलत होगा, जो सही होगा वो देखेंगे। एंड जैसे ही हमें लगेगा कि हमारे आंसर, मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स आर राइट, जैसे ही हमें लगेगा मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स आर राइट, तो हम क्या करेंगे, जो हम टाइम नोट करें वो टाइम नोट करेंगे। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट आंसर कर पाओगे। बट उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर टाइम अचीव करना है कि इतने पैसेजेस, मे बी 6 पैसेजेस, हम इतने टाइम में, मैं एक पैसेज को 5 to 7 मिनट से ज़्यादा में नहीं सॉल्व कर सकती, वो आपने डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड। बट स्पीड पे भी काम करना है, करेक्ट भी होना चाहिए और जल्दी जल्दी आंसर भी होना चाहिए, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।